उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जिस तरह से किसानों ने हल्ला बोल किया, उससे देश की सबसे बड़ी खबर बन गई। जिस तरह से 15 राज्यों के हजारों किसान मुजफ्फरनगर में जुटे, उससे सवाल भी खड़े हो गए। आखिरकार ये सवाल क्यों खड़े हुए? आखिरकार किसानों के हल्ला बोल से क्या असर होने वाला है? नेता किस बात से डरे हुए हैं? हजारों किसानों के इकट्ठा होने से नेताओं की नींद क्यों उड़ रही है? आइए आपको बताते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जिस तरह से राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड में महापंचायत की है, उसमें 300 से ज्यादा किसान संगठन शामिल हुए। देश भर के 15 राज्यों से किसान यहां पर आए। हजारों किसानों की संख्या यहां पर दिखाई दी। समुद्री हुजूम की तस्वीरें देश भर के सामने आ गई। किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है। दिल्ली को घेर कर बैठने वाले किसान पीछे नहीं हटने वाले हैं। राकेश टिकैत ने यह तक कह दिया कि अगर हमारी कब्रगाह बन जाएगी तो भी हम दिल्ली का बॉर्डर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ऐसी कौन सी बात रही जिससे राकेश टिकैत के बयान ने नेताओं की नींद उड़ा दी? आखिरकार ऐसा कौन सा मामला राकेश टिकैत ने उठा दिया जिससे देना होगा? जाहिर है कि राकेश टिकैत के इस बयान से जनता तक यह संदेश पहुंच गया कि अगर मोदी सरकार को हराना है तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को हटाना होगा, और योगी सरकार को हटाना है तो इस वक्त विपक्ष में मौजूद दलों का साथ देना होगा। यानी कि योगी के खिलाफ राकेश टिकैत का मुजफ्फरनगर से यह हल्ला बोल रहा है। राकेश टिकैत खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो राकेश टिकैत किसका साथ दे रहे हैं, ये तमाम बातें सामने हैं। जाहिर है कि इस वक्त राकेश टिकैत योगी सरकार को 2022 में मुंह की खाने के लिए मजबूर करना चाहते हैं, और उसी की तैयारी राकेश टिकैत ने कर ली है। और इसी के साथ साथ ये कहा जा सकता है कि विपक्ष की रणनीति बड़ी बारीकी से इस वक्त अपनी चाल चल रही है कि राकेश टिकैत सीधे सीधे किसी पार्टी का साथ भी देते हुए दिख नहीं रहे हैं, लेकिन हल्ला बोल में योगी को हराने की बात साफ कर रहे हैं। और Back, folks. UP, the biggest prize of them all. Why is it UP as R. Jagannathan writes? BJP's bumpy road to Lucknow. A concatenation of events and interests has made the UP assembly elections next year a huge challenge for BJP. What looked like a slam dunk just a few months ago has now turned out to be a shaky march to the victory podium. Narendra Modi in Delhi and Yogi Adityanath in Lucknow have a fight on their hands. The post-COVID collapse in employment, the convergence of opposition interests in humbling BJP in its biggest bastion, and the now reviving farmer protests against three reform bills passed by the centre are serious causes for concern. UP is important not only because the BJP-led front won 325 seats in the House of 403 and 270, but because it holds the key to who will rule Delhi in 2024. Presidential elections are due in 22. After the assembly election, and without a high total in UP, BJP may have to compromise. Okay. One is, so one of the things he suggested, one is to exploit fault lines between poor and rich farmer by targeting special benefit. Well, let me just open his eyes for him. There is no small and rich farmer. But as it goes along, the pain in UP continues. Our family's future is gone. Kin of co-victims in shock. Viral fever cases spike in new regions in UP. Massive march in Karnal as talks with farmers fail. Muslims harassed in UP. Owaisi slams BJP. This is the BJP card, right, folks? If BSP is voted to power, we will ensure security of Brahmins, says Mayawati. Another missile of guess who had the BJP. Panchajanya stands for Dharma Youth, says key RSS Netha after Infiro. A day after RSS national media head Sunil Ambedkar distanced from the Panchajanya story, making allegations against Infosys. Senior Sangh member Manmohan Vaidya said the magazine stands for Dharma Youth, which is being seen as a clean shit to the slapping of charge. Hey, go figure this out, folks. RSS, I think, cuckoo land. 12.5 million COVID-19 vaccine doses being given in a day in India. PM, India nears milestone at least one jab to 50% results. This is the reality, folks. Daily jabs we were always going to be good at. We are phenomenal. That's got nothing to do with Modi Sarkar. That's got to do with the system set up for the polio administration. Just so that the bucks know that. That's got nothing to do with the Modi Sarkar. What was to do with the Modi Sarkar was to ensure sufficient production. Did they do that? This says it all. 50% one jab. We need to be at two jabs, 70%. That's the reality, folks. But we are going to sing pray for everybody. We are doing 1.25. Oh, give me a break. A little bit too late, folks. Cheers.
जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात में 4-6 दिनों से एमपी के अलग अलग इलाकों से परेशान करने वाले कई वीडियो आ रहे हैं। किसी रेहड़ी वाले को, किसी खोमचे वाले को, किसी चूड़ी वाले को, किसी कबाड़ी वाले को, किसी ठेले वाले को हिंदुत्ववादी लफंगे, बेलगाम ऐसे गुंडे जय श्री राम बोलने को मजबूर करके उनको टॉर्चर कर रहे हैं, कहीं पिटाई कर रहे हैं, कहीं उनके ठेले उलट रहे हैं, कहीं उन्हें उनकी दुकान या खोमचे को समेटने को मजबूर कर रहे हैं। और ये सब खुलेआम हो रहा है, वीडियो भी बना रहे हैं, वायरल भी कर रहे हैं। और ये हो रहा है शिवराज सिंह की सरकार में। अगर उन लफंगों को इस बात का एहसास होता कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उन्हें सलाखों के पीछे जाना होगा, तो शायद ये करने की हिम्मत न करते। लेकिन ये लगातार बीते 7-8 दिनों में 4 या 5 ऐसी घटनाएं हुई हैं। अभी ताजा मामला आज सुबह ही देखा मैंने ट्विटर पर। ताजा मामला है इंदौर के देपालपुर गांव में, देपालपुर इलाके में, जहां एक गरीब खोमचे वाला पानी पूरी बेच रहा था। उसके ठेले पर लिखा था सावरिया। क्या है इसमें, इस नाम में? अगर कोई सावरिया नाम लिखकर अगर खोमचा लगाता है, सालों से लगाता था, लेकिन कुछ लफंगे किस्म के कट्टर हिंदुत्ववादी जो भगवान राम का नाम भी बदनाम करते हैं, ऐसे लोग जिन्हें नफरत है एक धर्म विशेष से, ऐसे लोगों ने उस गफ्फार नाम के शख्स को, जो पानी पूरी बेचने के लिए ठेले लगाता था, उसके ठेले के पास जाकर उसे टॉर्चर कर रहे हैं, उसे डरा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम इस तरह से सावरिया का नाम से कैसे दुकान चला सकते हो। वीडियो में साफ दिख रहा है कि ये गरीब आदमी डरा हुआ है और डरकर वो फिर कहता है कि हम ये बैनर हटा लेंगे। The other bugbear for this government is the economy. While some cylinders are working, all the cylinders are not working at all, no matter what they say, right? See, and this is what's hurting people because there's no jobs. LPG refill to cost 25 rupees more, rise in price for second time in 15 days. LPG rate up rupees 25. Rahul says government thinks GDP is gas, diesel, petrol. This is a joke, right? Here too, manufacturing growth slows in August, PMI at 52.3. Rupees 1.12 lakh crore GST mop up in August, but lower than July. This is the important point, lower than July. Where the GDP numbers go wrong at this? GDP numbers tell a story. Growth is lower than expected. The informal sector is suffering, and a fiscal boost is needed. The latest numbers increase the likelihood of 2021-22 GDP growth, missing the RBI projection of 9.5%. 3. It is important the policy attention is not swayed by the ongoing bull run in the equity market. Rightly said, buoyant stock markets are good for investor confidence, foreign exchange inflows, and wealth creation, but they do very little to boost the macroeconomy. Also, investments in the macroeconomy are much more likely to bear fruits in the long run than stock markets, which at the moment are not just overvalued but also enjoy external tailwinds, which will eventually end. This is the important part, folks, because when you have this good news, India third globally in terms of unicorns, Invest India CEO, that's right. We are humming. We are leaving Pakistan and China way behind, but it's critical to ramp up our macroeconomy and hence the demand. More later. 17 में आपने बीजेपी का साथ दिया। 17 में दिया, 14 में वोट दी भाई। फांसी लगवाएगा या बात पे कोई मुकदमा मैंने लगवा दिए? हाँ दिए, कह रहे बार बार कही मैंने। और बीजेपी को कौन बचा सकता है? एक ही व्यक्ति है यूपी में, तो कौन बचा लेंगे? वो योगी जी। कृपया करके अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए तो बच जाएगा प्रदेश भी बनेगा। पूरे भारत में अगर सिर्फ मुझे वोट इनके खिलाफ डालनी पड़ी तो मैं वो डालूंगी, ध्यान रखना। हाँ जी, 2024 में मुझे पूरे में घूमना पड़ा, वो भी घूमूंगी पूरा भारत में। बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी मुक्त भारत चाहते हैं भाई, ऐसे थोड़ी बैठ जाएंगे। मैं भी सोच रही 2000 में घर बनाऊं या बहन की शादी करूं। 2019 में शादी करी है मैंने, ठीक, अपना ब्याह करूं, किसको करूं, कहाँ करूं। 2000 में सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। तो 403 विधानसभाओं पे चुनाव लड़ेंगे, आप देखना। किंग मेकर उत्तर प्रदेश में कैसा बनाएंगे, बढ़िया। आप धो दे जनता की, जो माता बहनों की, कि जो 400 रुपए का सिलेंडर था वो 900 रुपए का कर दिया। ये जनता से मिल नहीं रहे, जनता तो बैठी है इनसे मिलने को, मिले तो सही कोई। जवाब देंगे ना उनको। हम पहले बीजेपी के थे, लेकिन अब उनको जवाब देंगे। अब हम किसके? बीजेपी कि मोदी जी तो अपने मन की बात करते हैं, लेकिन पूनम पंडित के मन की बात क्या है? और ये जनता के बीच लगातार जाती रहती है, कभी बुलंदशहर, कभी आगरा, लखनऊ, मथुरा। तो वहाँ की जनता इनसे क्या कहती है? स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया। एक बात बताइए, 2 पूछ लो। मोदी जी तो मन की बात करते हैं। अच्छा, हमारी भी सुन लो। आपके सुनने ही तो आए हम। आप ही तो सुनना है, मोदी जी की बात कर रहे हैं हम, तो बात मोदी जी की चल रही ना। नहीं, आप भी आती है मथुरा। ना जाऊं, ना जाऊं। अब आनंद को भी तकलीफ होने लगी। वहाँ की जनता कह रही, सुन लो ये है। मेरे बाबा बताओ क्या बता रहे हैं? वो तो कह रहे हैं बीजेपी वाले आएंगे गाँव में, जन आशीर्वाद यात्रा में आपका आशीर्वाद लेंगे। तो सही, हम तो बैठे हैं, ये देंगे आशीर्वाद। जवाब देंगे ना उनको। हम पहले बीजेपी के थे, लेकिन अब उनको जवाब देंगे। अब हम किसके? बीजेपी से नाराज हो गया। बिल्कुल,
बिल्कुल सरेआम पहले हम नाराज हो गए थे बीजेपी से? अरे बीजेपी से तो पूरा प्रदेश नाराज है, पूरा देश नाराज है। सदन में आके अपने 4.5 साल के विकास के कसीदे पढ़ रहे थे, पूरा पेपर में पन्ना था, पूरा डाटा के साथ आए थे। 40 लाख कह रहे थे, हमने वो दे दिया, 40 लाख आवास दे दिया, 3.5 करोड़ घरों में बिजली पहुंचा दी, उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर बंटवा दिए। ज्यादा दूर की तो बात मैं करती नहीं, 400 रुपए से 900 का हो गया। दूसरी बात, ज्यादा दूर की बात नहीं करती, सिकंदराबाद में कितनी झुग्गी है, कितनों को घर मिले, दिखाऊं अभी चल के यहीं। ज्यादा दूर की नहीं करते, यही दिखा दे कि सिकंदराबाद में क्या दिक्कत आ रही है। तो आंकड़े झूठे उनके, आंकड़े झूठे उनके। आपको सच्चे लग रहे, अगर उनको आपको सच्चे लग रहे या वो सच बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जनता हमें हमारे शब्दों पर विश्वास करती है, जनता को भरोसा है, दोबारा 350 अकाउंट के फूल खिलेंगे। मोदी जी ने तो ऐसी आंख धो दी जनता की, जो माता बहनों की, कि जो 400 रुपए का सिलेंडर था वो 900 रुपए का कर दिया। कितनी अच्छी आंख आपसे बात करेंगे, थोड़ा दिन से बात करें, छोड़ कर लेंगे। आप बताइए। क्या बताऊं? वही कह रहे हैं कि जो जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, गाँव आओ, हम तुम्हारा स्वागत करेंगे, बुला रहे हैं आपको, मिस कर रहे हैं आपको, और आपको आना चाहिए, क्योंकि आप अपने सत्ता का दूसरा कार्यकाल चल रहा और प्रदेश में इनका पहला। So the only sector that's doing well, folks, is the external sector, which is the exports. And the reason is that there's been pump priming all across the world, especially Europe and the United States. So the exports there have exploded. But nothing in India, right? It says 400 billion target. India seeks to double UAE exports, raise bar for US and UK. It's happening. Aiming for 100 billion textile export, 250 billion domestic production, says Goyal. This is textile. So here's what we got. So is this 7% solution? It says none should be enthused by the 20% rise in GDP in the April-June quarter, since this merely represents a partial recovery from the 24% fall. Now comes the good news. In 2021, the first time in 8 years, exports are booming. Merchandise exports especially. This implies compound growth of over 15% a year. For 2 years, a return to the heady days of yore. And the increase has been engineering goods 24%, chemicals 13%, textiles 11%, and electronics 17%. Exports of petroleum products also. The July export figure is not a flash in the pan. But here's where we got to be really careful. FM unveils 6 lakh crore asset monetization plan. And what do we have? Monetize assets the right way. BJP, be pragmatic, ensure transparency, grant autonomy, and focus on the details. This is the big worry. And where it will not help. Bad mouthing business kills prosperity. India needs a culture that values entrepreneurship, and this is that silly mouthpiece of the RSS. And what do we have here? Government of India plus India Inc. No nation becomes prosperous without trust between government and business, and that's not happening because of the crony capitalism and the mouthpiece of the RSS comments. This is good news, folks. Kane to drop cases in 1 billion refund offer, and the same thing should be done for Vodafone, and the package for the telecom is absolutely critical now, folks. We are on the right track as far as exports are concerned. Jai Hind. एक बात सुनिए, अरे मैं क्या करूं, क्या गुंडागर्दी खत्म हो गई, क्राइम सारे क्राइम खत्म हो गए, सारे रेप कहां पहुंचा है, क्राइम कहां पहुंचा है, खत्म करा नहीं, बिल्कुल गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई, गुंडागर्दी और चरम सीमा पे। देखिए कि मैं 80 करोड़ को राशन दे रहे हैं, अरे ये गरीब नहीं है तो 80 करोड़ खाते हैं, बच्चे ये काम करते हैं ना, इनमें इनको भी रोजगार बताते हैं। हमने हमारे हिसाब से तो 2 पैसे का काम नहीं है। हिंदुस्तान बिल्कुल गर्क में जा रहा है, इससे गरीबाई खत्म हो जाएगी। सुनो, इससे गरीबी खत्म हो जाएगी। लोग घर दारू और पीते 1000 रुपया फ्री फंड के मिल गए, सब दिए दे रहे हैं। नौकरियां कहाँ है? नौकरियां तो इन्होंने छीन ली, सब ले ली नौकरियां। वहां के तरह रहेगा वही अधिकारी, वही नेता, वही कर्मचारी, सब वही है। विकास क्या करेगा? नाम से विकास नहीं होता है। साइकिल पर सवार हैं, 2022 में चुनाव है, हाँ, और साइकिल की लहर मानी जा रही है। हाँ, तो क्या लगता है, योगी जी ने बढ़िया किया है? साइकिल आएगी, साइकिल आएगी, 100% आएगी। साइकिल आएगी, हाँ, 100% आएगी। साइकिल आएगी, हाँ बिल्कुल। क्या बता, महंगाई देखिए आप, पेट्रोल डीजल से लेकर के आप, पेट्रोल डीजल है, सरसों का तेल देख लीजिए कहाँ जा रहा है। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी कहाँ जाएगा बताइए मुझे। तो कह रहे हैं यूपी में गरीब है ही नहीं, कोई गरीब नहीं है। 80 करोड़ को राशन कहाँ से दे रहे हैं? 80 करोड़ बताते हैं कि मैं 80 करोड़ को राशन दे रहे हैं, अरे ये गरीब नहीं है तो 80 करोड़ कहाँ से बताइए मुझे। गरीब नहीं है तो 80 करोड़ को राशन कहाँ से दे रहे हैं? और आज योगी जी लखनऊ विधानसभा, अब बताइए, गरीबों के पास पेट में खाना नहीं है, लेकिन ये सरकार योगा करवा रही है। तो पकौड़े तलने का भी रोजगार खत्म हो गया। 200 रुपये सरसों तेल मिलेगा तो पकौड़ा कैसे तलेंगे हम? देश के लोग जब दवा मांग रहे थे, ऑक्सीजन मांग रहे थे, हमारा प्रधानमंत्री क्या कर रहा था? 2 मई दीदी गई, और आदित्यनाथ योगी जी का जमानत जब्त हो रहा है, बोरिया बिस्तर बंद चुका है, और हमको भी दे दीजिए और देश की जनता को भी दे दीजिएगा। वो भी इधर से 2 करोड़ निकाल डालेगा, 18 करोड़ उधर से निकालेगा, इधर से 1 किलो चावल डालेगा, उधर से 9 किलो चावल निकालेगा, इधर से 100 रुपए डालेगा, उधर से 900 रुपए निकालेगा। ये यंत्र देश के नागरिकों को भी नफरत का आलम ना पूछ गालिब।
55 के बाद 57 पढ़ाए जाते हैं, 56 इंच का नाम सुनते ही बच्चे फेंकू फेंकू चिल्लाने लगते हैं। आदित्यनाथ योगी जी को उत्तराखंड के पहाड़ियों में भेजने की उत्तर प्रदेश की जनता तैयारी कर चुकी है। देखिए, उत्तर प्रदेश हमारे देश की सबसे बड़ी